Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing absolutely fine. So today we have with us Vansh Grover sir. So he has been an assistant professor at DIT University. Plus he is a UX designer also. He has an experience of more than 2-3 years. And today we're going to be talking about some diverse topics. How are you sir? I'm great. How are you? आई एम गुड टू मैं आप सबको बता देती हूँ कि सर इज़ ऑल्सो अ फिज़िक्स ग्रेजुएट सो सर हाउ दिस थिंग हैपेंड कि आप फिज़िक्स ग्रेजुएट थे फिर आप यूएक्स में आ गए हाउ दिस हैपेंड. Well, I'll say it happened entirely because of two reasons. Number one, which actually took the whole world by storm, that was COVID. And the second reason was I wanted to do something different. Like in physics, when I was studying it, it was quite orthodox. What were my views with the physics were never matching with the others. They were I like आते थे कुछ तो बोलते थे चले जाते थे. But for me physics was quite magical. So and I didn't realize that what I was thinking of physics as design only. So when I studied more about design, animation, UX, UI, वो so यू स्टडीड UX अबाउट UI. एनिमेशन ऑल्सो. Yeah, I actually, if you see the drawings here, I actually studied animation also a little. So I got interest in UX UI because I didn't like to sit in one place. So it let me roam around multiple fields. You are the best example of multidisciplinary designer we can say कि मतलब Yeah. nice. So how this physics helped you in UX? Physics actually helped me much greater way than I could imagine. Like color psychology हम पढ़ते हैं या फिर अपन पढ़ते हैं कि how to place things. It's so simple how to place things, how हाँ. to shape things. So basically, if you don't have a basic idea of like wavelengths of color ki light and also geometry of things in a very good way, how एनिमेशन अगर हम कुछ माइक्रो इंटरेक्शंस बनाए या फिर कुछ भी हम उसमें एक इनोवेटिव सा इंटरेक्टिव सा एक एलिमेंट डाले सो यू हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द होल फिजिक्स की वो अगर एक बॉल ड्रॉप हो रही है तो टू मेक इट एज नेचुरल एज पॉसिबल इफ यू हैव दैट नॉलेज इन योर हेड दैट कैलकुलेशन इन योर हेड इट्स बिकम्स वेरी फास्टर एंड सिंपलर. कुछ बताओ उसके बारे में आपने जो बोला कलर साइकोलॉजी एंड ऑल ऑफ दैट. जैसे कलर साइकोलॉजी था ऑब्वियसली सम पीपल टीच दैट रेड यूज करना चाहिए लंबा साइन दूर से दिखता है ब्लू यूज करना चाहिए बट वी नेवर सीम टू टॉक अबाउट व्हाई हाउ विच टाइप ऑफ रेड इज द बेस्ट फॉर द थिंग. अब वैसे अब किसी ने ये नोटिस नहीं किया कि क्यों ऑरेंज ही यूज होए जा रहा है रेड क्यों नहीं. दैट देन इट्स अ डिफरेंट थिंग. अब एक चीज थी कि डोमिनोज का अगर मैं लोगो लूं तो डोमिनोज हैज ब्लू एंड रेड both of them in one. PepsiCo also does the same. But people don't realize why. It's because see वही कि ब्लू की वेवलेंथ सबसे ज्यादा सबसे कम होती है तो वो पास से ज्यादा अच्छे से दिखेगा. रेड की सबसे ज्यादा होती है तो दूर से सबसे ज्यादा अच्छे से दिखेगा. So they actually combine both. काफ़ी सही चीज़ है. सो सर वी आर टॉकिंग अबाउट यूएक्स इन फिज़िक्स मतलब ऐसे एकदम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच करके. तो हाउ डज दिस थिंग मतलब ऐसे हैपन टू यू कि ऐसे और साइंस का क्या रिलेशन ऐसे बना ऐसे यूएक्स से और ऐसे आपने कुछ एक्सपीरियंसेस फेस किए हैं अपने पास्ट में कि मतलब आपको ऐसे क्लिक हुआ हो कि अच्छा यार ये बेस्ट एग्जांपल है मल्टी डिसिप्लिनरी डिज़ाइन का कुछ. Exactly. So I was seeing people in the industry or even in the academic field that people usually don't have a very strong science background when they jump into the design. And that actually was to my advantage because I was a little strong there and I was thinking nobody is actually applying the principles that are being taught not correctly most of the times but that are we taught into this thing. So I used to always see as like अगर मैं board में पढ़ा रहा हूँ so I used to make
a line, big bright line. Those were the first years last year. तो बड़ा सा एक red line बनाया, बड़ा सा एक blue line बनाया. I sent them all back to the black wall, पूरा बड़ा सा studio के last में, and ask कि क्या दिख रहा है तुम्हें? They all said red. ठीक है, फिर मैं उनको बोला धीरे धीरे पास आओ, आते रहे, and then they started to see blue more. Then I explained कि देखो पढ़ा होगा, अब समझो क्या था वो. So like this, so they actually associated with, हाँ हमें पढ़ाया तो था ऐसा कुछ साइंस में. भूल जाता है वो. So they have that wow factor. वाओ Oh, फैक्टर. अच्छा. मुझे भी अभी हुआ था वाओ, ये तो मुझे पता ही नहीं था वो डोमिनोज वाला. सो यू डिड मास्टर्स इन डिजाइन like Yeah. after bachelor's in science, physics. हाँ, physics honors I did. उसके बाद मैंने किया. ओके. सो अभी सर जैसे कि यूएक्स इज एन इमर्जिंग फील्ड, तो काफ़ी सारे ऐसे कल्चरल सेंसिटिविटी हो जाती है लोगों में कि ऐसे मतलब ऐसे इफ़ वी आर बिल्डिंग अ ग्लोबल प्रोडक्ट, यू कैन से ग्लोबल डिजिटल प्रोडक्ट, तो बहुत सारी डाइवर्स ऑडियंस भी है यूएक्स के लिए. तो ऐसी क्या अप्रोच रखनी चाहिए यूएक्स डिज़ाइनर्स को इस टाइम पे कि कल्चरल सेंसिटिविटी अफेक्ट ना हो? I think our country is the best thing for this, because see, global market में we have the highest population out there. So actually we have to think that how culturally sensitive we can get. For example, see the word mota, for example, if I just say mota, see it has different meaning when you translate it to English, but it has a different meaning for people of Gujarat. मोटा भाई. करेक्ट, मोटा भाई, बड़ा भाई, है ना. सो अब इफ वी कंप्लीटली अवॉइड दैट वर्ड, है ना, ठीक है, एंड वी रिप्लेस इट विद समथिंग एल्स सो दैट एवरीबॉडी कैन स्ट्रीमलाइन इट इन देयर ब्रेन. So we have to actually think about words which can, and statements which everyone will understand in a similar perspective. Because होता क्या है, कभी कभी हमने सुना होगा दूसरी लैंग्वेजेस में भी कभी कभी ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो कि हमारी लैंग्वेज में कुछ और ही मिल रहा होता है, या हमारी रीजनल डायलेक्ट में वो कुछ और है, अलग एक्सेंट में वो कुछ और है. सो समटाइम्स जस्ट जो एक्चुअली आजकल हम बोलते हैं यूएक्स कॉपी राइटिंग, UX copy. So these are the things, मतलब this has to be well thought out कि ऐसा कुछ ढूंढो, ऐसा context या ऐसा dialogue या ऐसी script ढूंढो कि जो that resonates with everybody, and it will resonate with everybody. Script as in what? Script अगर जैसे हम वीडियो का स्क्रिप्ट बना रहे हैं, है ना, या फिर हम किसी UX की कॉपी राइटिंग कर रहे हैं, या anything the literature that we are speaking or writing or showcasing, it can be so freeing out of culture that it resonates with everybody एकदम से. Okay, got it. ठीक है, yeah. So basically what are like ऐसे बहुत ज़्यादा emerging word है ये UX copy writing, और तो मतलब इस डेजिग्नेशन में होता क्या है बेसिकली, मतलब ऐसे कॉपी राइटर्स का नाम सुना है, कंटेंट राइटर्स का नाम सुना है, व्हाट इज यूएक्स कॉपी राइटर? So UX copywriting is basically you write your thing in such a fashion that it hits, it makes the experience better. So if I give an example of 2 minutes noodles, Maggie, everyone thinks of the same brand. ठीक है, so people have been doing this for a very long time. It was called tagline. Now extend that tagline, make the words bigger, and you have a body text suppose. So body text भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग पहली 2 लाइन पढ़ के छोड़ दे, भाई आगे बढ़ो, scroll. Your thing and language and the catching of the language should be as such कि body text का एक लाइन पढ़ा, दूसरी लाइन more interesting, third line even more interesting, and you actually read the entire body text and it somewhat like add some value to you. Because information तो सब दे रहा है, but suppose if you makes you think, oh yeah, मैं अपनी जिंदगी में भी इसको कुछ implement कर सकता हूँ. So that is something what UX copywriting is all about. Like it is somewhat like ऐसे content writers
मे बी. Exactly. Content writers, but for digital media, for websites. Like, because we have seen in the industry, मेरे साथ हुआ था कि जब मैं नया नया आया था, I didn't used to pay attention to it. I used to pay very detailed attention to design when I was an intern. Everyone कि does. अच्छा सा दिखे, बढ़िया दिखे, and the manager is not liking it. My design head is not liking it, and my design head said कि अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको ठीक से लिखो. तो and manager like it's not good, redesign it, blah blah blah. And I was like कि redesign यार, design में तो मैंने यार बहुत time लगा दिया. So my manager came, my design head was such a nice guy, God bless him. So he came and said कि Vansh, copywriting, and he was the first one who actually introduced me to the term Copywriting. and he said कि जो तुम लिख रहे हो ना, डेवलपर भी वही लिख देगा. अब समझो, अब तुम बैठे हो, ये प्रोडक्ट चला रहे हो और तुम पढ़ रहे हो, तो बताओ अच्छा लगेगा क्या लॉरम इप्सम लिखा हुआ? सो आई विल आस्क कि अगर आपको यूएक्स कॉपीराइटिंग सीखना है, यू स्टडी लिटरेचर. Actually, I think if you are a UX designer, you have to be a good UX copywriter. That comes with the package. बट अगर किसी बिग 4 कंपनी में जा रहा है, फिर फैंग मैंग जैसी कंपनीज में जा रहा है, तो शायद यूएक्स कॉपीराइटर्स अलग होते हैं, ऐसा कुछ है? या यूएक्स कॉपीराइटर्स अलग हो सकते हैं, बट आई विल से कि इट विल बी अ शॉर्ट एंडेड फील्ड, क्योंकि विद द कमिंग अप ऑफ एआई एंड एवरीथिंग. सो आई थिंक अ यूएक्स डिजाइनर, because obviously it's a user experience designer. So obviously he has to think, or he or she has to think about the entire UX UI UX experience of the thing, and experience is not only about the looks, it's about what you have written in it. Exactly. So I think UX काफ़ी ऐसे मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया. इसमें फिजिक्स भी आ गई, और कंटेंट राइटिंग भी आ गई, आर्ट भी आ गई, क्रिएटिविटी भी आ गई, सब कुछ आ गया. सो प्रीटी इंटरेस्टिंग. व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऐसे मतलब वर्बल एंड नॉन वर्बल स्पीकिंग स्किल्स के बारे में इन टर्म्स ऑफ यूएक्स डिज़ाइन? I think it's the whole point of a communication is about reading the room. ठीक है, the formal and informal thing. अब suppose I go into a class. ठीक है, everybody is very work oriented and everybody just wants to design, study. So obviously my whole approach of the communication and explaining, because I never plan a script of my class, neither I plan how I will teach. I just know this is what I will teach. I will go inside, I'll see क्या mood है आज इनका, and then I will improvise. So the thing is, अब अगर एक बैच है, I said before कि पूरा focused है, ठीक है, they are studying, they know a lot of jargon, so you have to have a lot of formal elements in your delivery. Whereas other class पूरा मस्ती वाले मूड में है, आज नहीं यार, आज नहीं पढ़ पाएंगे हम, कुछ नहीं हो पाएगा आज, ठीक है, and they don't like to speak jargons, they don't understand over usage of jargons a lot, and they like to have a little casual tone. So obviously my delivery will shift. अब if I say wavelength to the first person कि wavelength है, दिल उनको मजा आएगा, because it's something new term. But if I say wavelength, अरे यार फिर से मैं, हम यही तो छोड़ के आए थे, हम अब क्यों जा रहे हैं? So then I will have to speak Hindi, दूर जाओ वापस आओ, then they will understand. I think UX designers के साथ होता है बहुत सारे UX डिज़ाइनर्स. मतलब अगर मैं आपको छोड़ दूँ तो सब साइंस छोड़ के ही आए हैं, जैसे कि मैं एक परफेक्ट एग्जांपल हूँ. मैं भी साइंस छोड़ के आया हूँ. हाँ, मतलब बेसिकली यू लाइक फिजिक्स ना. आई डोंट लाइक फिजिक्स, आई डोंट लाइक केमिस्ट्री, आई ओनली लाइक बायोलॉजी. तो वाला सीन है मेरा. वेवलेंथ्स. नाइस. सर, जैसे आप बात कर रहे थे अभी वेवलेंथ्स के बारे में, और यू नो वो उस फर्स्ट बैच के बारे में, तो एक कहीं ना कहीं एक क्रिटिकल थिंकिंग हम कह सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा होती है उस वाले बैच में जहाँ आप फर्स्ट जो बैच बोल रहे हो. तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या रोल प्ले करती है? क्या एक यूएक्स डिज़ाइनर को क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए? I'll say I will disagree with the fact कि पहले वाले बैच में क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं है. It is a communication barrier.
हाँ ठीक है, हाँ फर्स्ट क्लास स्पीक्स मोर जार्गन, सेकंड क्लास स्पीक्स लेस लेस जार्गन, जार्गन बट डजंट मीन कि वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस मॉर्निंग ओनली आई हैड एन ऑनलाइन क्लास एंड they were tired of UX and they have midterms were coming up and they were like कि sir EVS पढ़ा दोगे क्या? I'm like चलो दो and I saw the and I remembered all of it कि हाँ यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है तो easy है. बोला ठीक है EVS पढ़ा दो, डर लग रहा है. तो मैंने ना वहाँ से शिफ्ट करके EVS चालू हो गया. I don't know how this turn of events happened. Yeah, sometimes I do that. इलेक्टिव So पढ़ाने अब लगे आप. हुआ क्या कि अब वो EVS पढ़ना चालू किया एंड मैंने बोला भैया एनवायरनमेंट क्या होता है. नाउ दिस वन पर्सन सेज it's an ecosystem made of abiotic and biotic elements. ठीक है, and this other person was like कि somebody said कि it is nature, ये वो फलाना फलाना फलाना, and one more person is like पेड़ आसमान और क्या कहते हैं जमीन. And I swear to God that paid Asman, I know he was messing with me there, but he picked out all of the mistakes I made. As in? All of the mistakes I made while writing the facts. मैंने वहाँ पे हेक्टेयर को एकर्स में लिखा, उसके पॉइंट्स की भी गलती. So you know he actually was verifying things and you know critical होना अब वही है कि he started with पेड़ जमीन आसमान but he was critiquing everything and he is the one who actually after my classes gives me very amazing critiques and helps me improve. So it is just the language barrier, that jargon, but doesn't affect कि वो critical thinking क्या है. Critical thinking is attention to detail, कि कौन कितना attention to detail देता है. If you are paying attention to minute details, so you are a good designer. Exactly. You have to study the body language. You have to study how they are feeling. You the don't. Users basically. They want a wow factor is seen. It's not heard. Wow वो कोई बोलेगा नहीं. तुम देख सकते हो एक crowd में. Nice. तो आजकल तो जैसे UI तो चले ही जाने वाला है, मुझे ऐसा लगता है AI की वजह से, जहाँ तक, क्योंकि UI विजार्ड जैसे टूल्स आ गए हैं और मोटिफ एक प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा, वो उसमें भी AI काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेट किया गया है. तो आपको क्या लगता है कि UI डिज़ाइनर्स तो चलो एक अलग से पार्ट हो गए, UX डिज़ाइनर्स को क्या AI रिप्लेस कर सकता है? ये बहुत ही ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो जाता है, बट मैं सबसे पूछती हूँ ये चीज़. Well, I think that UI designers, UX designers, ये जो है, ये पूरा जो फंडा है, मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता, क्योंकि जो UX है, UX is something that every designer should implement in their design. So UI designer हो गया, product हो गया, तुम्हारा animation designer हो गया, कुछ भी हो गया, you have to apply UX in it, correct? So अब UI जो है, I am seeing कि AI खा रहा है, but AI खा उनका रहा है जो कि बोरिंग हो रहे हैं, as in जो एक ही चीज को रिपीट करे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, and they have lost the entire sense of individuality in their thing. So I have this quote I say in class. I randomly came up with this quote and received a random wow factor, and I've been using it ever since. So please, you make art for yourself, you design for others. हाँ, मैंने आपका सुना था ये, आपने ये बताया था. ठीक है. So I have this, and now this is changing for me. ठीक है, there that art for yourself, design for others, this gap is merging. अब ये है कि AI क्या करता है, जो भी पुराना काम है, पुराना जो भी वो लेगा अपने उस सर्वर में, and they will it will learn from it. It will give you combination of the purana things, purana designs, and make something. The thing is, the new element is still missing. Okay, till AI has a human level conscience and empathy and other understanding, basically when we reach the Terminator level, till then I don't think कि AI खाने वाला है even UI also, क्योंकि टिकेगा वही जो अपना इंडिविजुअल एलिमेंट उसमें लाएगा, something they only can do differently in it.
अब मैं वही देख रहा हूँ कि वही जा रहा है। अब नाउ आर्ट फॉर योर सेल्फ, वो आर्ट हमको डालनी पड़ेगी अपने डिजाइन में, डिज़ाइन में देन एग्जैक्टली। देन ओनली वी कैन एक्चुअली आउटरन। एक्चुअली एक और चीज़ भी है ना, मैं मतलब मैंने काफ़ी लोगों से बात भी की इस चीज़ के बारे में, पॉडकास्ट में भी मैंने काफ़ी लोगों से बात की इस चीज़ के बारे में। तो हर इंसान का यही कहना है कि नहीं खाएगा, ये है वो है, बट समवेयर आई बिलीव कि एक एक ना पॉइंट आ जाता है कि एआई से यूआईज बन रहे हैं, तो वो हर कंपनी बना लेगी। फिर यूएक्स यूआई डिज़ाइनर्स की नीड क्या थी? अगर आपका एक नया स्टार्टअप है और आपको एआई से ही बनाना है, तो फिर आप मार्केट से अलग कैसे हो? तो आई थिंक वो एआई नहीं कर सकता जो एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस कर सकती है। सर, वी हैव बिन टॉकिंग अबाउट यूएक्स डिज़ाइन, एआई एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन एक यूएक्स डिज़ाइनर बनने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है काम। तो काम कहाँ से शुरू करें? केस स्टडी क्या होती है? ब्रीफ में बता दो एक बार आप, और केस स्टडी में क्या क्या इंक्लूड कर सकता है एक इंसान, ब्रीफ में। अब देखो, एक होता है काम हाँ और एक होता है केस स्टडी, हाँ डिफरेंस है। हाँ ठीक है, काम होगा जो तुम डिजाइन बनाओगे, केस स्टडी इज समथिंग दैट यू विल लर्न कि हाँ ये कुछ ऐसे ऐसे करते हैं। केस स्टडी इज समथिंग वी हैव बीन और सम एंटरप्रेन्योर्स हैव बीन, एंड ऑल एंटरप्रेन्योर्स हैव बीन, एंड सम पीपल हु हैड ब्राइट ड्रीम्स फॉर देमसेल्व्स, एंड इवन फ्रॉम चाइल्डहुड दे हैव बीन डूइंग। ठीक है, फ्रॉम चाइल्डहुड हम देख रहे थे, अगर हमें कुछ एक बड़ा सा ड्रीम है, सपोज हमने देखा है कि बच्चा अगर बोलता है, मैं था उनमें से एक बच्चा, मेरे को एस्ट्रोनॉट बनना है, करेक्ट? द थिंग इज इट्स टेकन एज अ जोक, बट फॉर दैट किड इट्स रियल। नाउ ही विल एक्चुअली लुक एट एस्ट्रोनॉट, जितना उसका इंटेलेक्ट है वो एस्ट्रोनॉट के बारे में पढ़ेगा, वो करते क्या है, क्या करते हैं। ही इज एक्चुअली परफॉर्मिंग केस स्टडीज दैट मैचेस हिज इंटेलेक्ट। So that is a skill we all have learned. It just we have given it a name later on, a case study. केस स्टडी। ठीक है, अब काम की बात अगर हम करें, कहाँ से शुरू करना है, मैंने कहाँ से शुरू किया था, when I was studying for masters, हाँ हाँ and I felt very insecure and scared because उस टाइम पे मेरे बहुत like maximum of my classmates were from NIFT or NID or some very premium colleges, and I was like यार मैं तो BSc करके आया हूँ, मेरे को तो अब तो मैं गया तो but that one first semester I worked very hard to reach their level, and तो उसमें यही मैंने ऑब्जर्व किया कि वो लोग, मैंने किया कि मैं उन लोगों का काम देखता था और उन लोगों की कॉपी करता था। वो असाइनमेंट में नहीं देता था, बट मैं उनकी कॉपी करके देखता रहता था। या फिर कुछ एक डिजाइन मैंने अपना एक बना दिया था, डिजाइन मेंटोर का लिस्ट, उनके मैं पोर्टफोलियो देता था और उन्हीं को एग्जैक्टली कॉपी करता था वो कभी भी उतना अच्छे से बन ही नहीं पाता था। तो सी हाउ प्रीमियम इट इज दैट आई कैन नॉट कॉपी इट as a beginner, and I started copying for practice, copy till I started reaching their level. वहाँ पे मेरा एक फिग्मा और फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर उस टाइम 2020 में यही सब ज़्यादा थे, और टूल्स थे नहीं उस टाइम ज़्यादा प्रीवैलेंट। सो फिग्मा, फिर आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह ऑल्सो। सो आई एक्चुअली कॉपी टिल द पॉइंट आई कुड कॉपी परफेक्टली, एंड उसके बाद ना आई गॉट अ वेरी गुड आइडिया ऑफ सॉफ्टवेयर वेयर टू प्लेस थिंग्स। उसके बाद देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग माय थिंग्स। अब मेरा लो-फाई वायर फ्रेम जो होता है, यूजुअली यू हैव सीन दैट की अच्छे नीट लाइंस विद क्रॉस एंड इमेजेस, मेरा लो-फाई कचड़ा लगता है। सबका लगता है वो। नहीं, कचड़ा है मेरा ना, भी। everybody will say it, कचड़ा। For me it is not, it is random scribbling. So it like I don't use a scale ever for my lo-fi. I made it with rough lines and everything. And उससे क्या होता है, मेरे को एक freedom मिलता है to ideate धीरे 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 धीरे, क्योंकि अगर मैं अपना lo-fi ही स्केल से लेके परफेक्ट करता रहूंगा, I have lost on 5 good ideas. Exactly. True. ठीक है, सो वो करके मैंने डिजिटलाइज इट एंड एवरीथिंग। तो वहां से मेरा काम शुरू होता है कि पहले मैंने परफेक्ट किया कि वो लोगों से कॉपी करके मैंने समझा कि वो लोग अपनी चीजों को, एलिमेंट्स को प्लेस कैसे कर रहे हैं, दैट इट्स रेजोनेटिंग, एंड देन आई अंडरस्टूड दोस प्रिंसिपल्स। नाउ आई कैन अप्लाई देम इन माय ओन आइडियाज। सो दैट इज हाउ आई थिंक वन शुड स्टार्ट। मतलब
जैसे केस स्टडी की बात कर ली हमने, तो कितनी केस स्टडीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं अगर किसी को प्लेसमेंट में बैठना है, कॉलेज प्लेसमेंट्स में बैठना है? आपको एक्सपीरियंस है उस चीज़ का, यू हैव बीन एन प्रोफेसर, सो आपके पास काफ़ी बच्चे आते होंगे पूछने के लिए ये चीज़, तो कुछ टिप्स दीजिए बच्चों को. So I will tell them what my teacher said हाँ. कि बनाओ 2-3 बट ऐसी बनाओ कि वो दमदार होनी चाहिए. See 10 अगर तुम don't work on quantity, work on quality. ठीक है, अगर केस स्टडी ऐसी है कि सपोज यू पिक अ केस स्टडी ऑन like on an existing brand and you dig out facts which actually people were not able to figure out. मतलब You predict रीडिज़ाइन facts. सॉर्ट ऑफ अ थिंग है ना? रीडिजाइन भी नहीं, मान लो कुछ ऐसा फैक्ट निकाला तुमने यूआई देख के हाँ. जो एक्चुअली अंदर का सीक्रेट ही बाहर निकल गया. लोगों को समझ में पता भी नहीं चल रहा था कि ऐसा चल रहा है, और उसने प्रेडिक्ट कर लिया अपनी केस स्टडी से. ऐसी स्टडी कर ली, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, एंड इट कैन बी डन. ठीक है, अगेन इफ यू ऑब्जर्व, यू पे अटेंशन टू द डिटेल्स, यू कैन प्रेडिक्ट सम थिंग्स, है ना. और अगर वो केस स्टडी में मान लो उन्होंने अपना एक तर्क दिया अच्छा. कि मेरे को ये समझ आया, एट द एंड पर्सन विल गेट इंटरेस्टेड इन यू कि भाई ये दूसरों का कॉम्पिटिटर स्टडी में ये तो बेस्ट है. और कॉम्पिटिटर स्टडी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑब्वियसली नोबडी इज लेइंग आउट देयर इन्फो आउट इन द पब्लिक, एंड यू कैन दे एंड रिजल्ट्स अगर तुम प्रेडिक्ट कर पा रहे हो कि उनके अंदर खाने क्या चल रहा है, कंपनी वांट्स यू. वही कंपनी हायर कर लेगी तुम्हें जिसकी केस स्टडी बनाई है. डिजाइन में नहीं, खाली तुम पढ़ रहे हो, हाँ. उसी से ही हायर कर लेगी एज अ यूएक्स रिसर्चर. So that is a thing. If you are making a redesign, make the redesign कि भाई that company is like wow, oh I didn't, our top lead designer even didn't think of this perspective. So एक post एक portfolio project is so powerful that they will not even look at the other. Actually I often suggest 3 because I say कि एक अपना solo बनाओ, एक अपना यूआई स्किल्स का बनाओ, एक अपना रिसर्च स्किल का बनाओ. ठीक है, और उसमें एक या 2 सोलो रखो और बाकी ग्रुप रखो, सो दैट यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि द पर्सन हु इज हायरिंग यू हैज एन अंडरस्टैंडिंग कि दे वर्क वेल विद द ग्रुप्स, दे वर्क वेल सोलो आल्सो. हमारे कॉलेज में, इफ़ आई टॉक अबाउट DIT, सो हमारे कॉलेज में बिग 4 कंपनीज भी आती है. सो व्हाट स्टेज द प्रोसेस, ऐसे क्या प्रोसेस होता है कि मतलब कैसे कैसे गुजरना होता है एक UX डिज़ाइनर को, मतलब UX डिज़ाइन स्टूडेंट को जो कि फर्स्ट ईयर में, उनके लिए तो काफ़ी अच्छी एडवाइस हो जाएगी फर्स्ट सेकेंड ईयर वालों को. So big 4 when they come obviously they will look at the background, okay, where they came from, where they have studied, what their portfolio projects is all about. So past students I have seen who got selected, one was actually good at showcasing his individual self in his projects. So वही जो मैंने बोला ना, आर्ट को पोर करना, so obviously he made something unique only he can make. Correct. And दूसरी जो थी who got selected, I could see she was very well versed with her communication. It's just about a USP and training that USP to beyond limits. So अगर आपका एक ऐसा USP है that company has a requirement of, it can be anything. Obviously you will be an all-rounder, you will learn everything, but obviously there should be one thing that makes you outshine everybody. So if you are able to do that, maybe it's your research, maybe it's your UI, but what I have personally seen, it's mostly the way you present your work and yourself. दोनों में से कुछ, या तो दोनों या दोनों में से एक, सिंपल. Yep. That is the thing. So sir, we have talked about Big 4 कंपनी की, इनका तो ऐसे होता है. अगर किसी को ऐसे मैग में जाना है, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, यू नो, नेटफ्लिक्स एंड गूगल वगैरह, तो वो ऑफ कैंपस ही हो सकता है ऑफ कोर्स. तो उसके लिए कहाँ पे अप्रोच करें, क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या करना चाहिए? I will say 2 things they look for. They look for either very strong understanding of the theoretical aspect of it, or they want ki how well you align with their ideas. How well you align with their ideas, I have heard one interview that was coming on live. So they said ki one of the things I heard was ki
अगर एक फेल्ड एंटरप्रेन्योर है, हाँ हम उसको ले लेते हैं यूजुअली. Why? You know why? Why? क्योंकि those people have actually seen that struggle, have lived through that struggle. They know so much in so various ways. They are a good asset. Exactly, they are. ठीक है. So actually क्या है वो हो गया. या फिर even suppose I'll say if a person has live things going on, basically the case studies, the projects they are showcasing, it's not a portfolio project, it's just a link. Open this website, click on the link and see it for yourself. हाँ ये है ना. So basically क्या है कि अगर वो live है वो चीज launched, लाइव चीज है, लाइव प्रोजेक्ट्स है, obviously it will catch their eye. ठीक है. He has worked with things that have been successfully launched. yes. ठीक है. Obviously, so basically they will not see कि यार वही again they will see कि what individuality you can bring. They will hire not a designer, they will hire the individual. Yes, your problem is everywhere. Exactly. हाँ. अब किसी ने सोचा होगा ना वही कि मतलब जोमेटो का किसी ने तो सोचा होगा ना, कोई बाहर जाके नहीं ला सकता खाना. किसी ने तो वो चीज़ सोची होगी कि एक ऑर्डर करने वाला ऐप होना चाहिए. फिर स्विगी आया, ये सब फलाना ढिमकाना, सो चीज़ें आई. सो सर जैसे कि 4 साल का लोग कोर्स कर रहे हैं, मैं भी कोर्स कर रही हूँ ये यूएक्स डिज़ाइन का, तो आपको क्या लगता है कि बूट कैंप्स ज़्यादा बेटर होते हैं या फिर पूरा फुल फ्लेजेड 4 साल का कोर्स ज़्यादा बेटर हो सकता है? It depends upon you. I will only say it depends upon the person. I cannot say कि भाई 4 साल ही इम्पोर्टेंट है या फिर बूट कैंप्स ही ज़्यादा बढ़िया हैं. Everybody aligns with something else. Now मैं एक्चुअली अपने घर पे भी क्लासेस लेता हूँ जहाँ पे लोगों को बेटर समझ में आता है. सो यही मेरा क्लासरूम में ही हूँ मैं एक्चुअली. सो अब क्या है कि they don't come to the class. They don't like coming to the class. They come here. They like यहाँ पे हमको ठीक लगता है. So basically they need inclusivity. They need कि भाई जहाँ पे मैं non-filtered बिना डरे कुछ बोल सकता हूँ. Because I provide that environment and even in my classroom I have actually incorporated जितने मैंने अपने students पढ़ाए हैं. And I can confidently say this कि हर एक इंसान का कोई ना कोई एक interest इस रूम में है. So I actually put up my own portraits. Maybe the designs in your background. Yeah. Maybe the designs in your background which you made. Yeah, I actually had a TT in the table. Nice. Because one of them actually is a state level TT champion. You made your classroom as a Google का office. वहाँ सब कुछ. Yeah, I have made my classroom so that everyone finds at least one thing that they can like, and they makes it their comfortable place. So वही है कि it's all about paying attention to the details, what they like. Even the quiet ones have lots of things they like. Of course they have, yeah. Introverts. Yeah. Being one myself in the past. I think now you're not. You are an ambivert, I guess. I would say. Yeah, I'll say. Yeah, same. I think काफ़ी enjoy करते हुए आपको ऐसे देखते हुए कि अब सर चलो अपने comfort zone से बाहर निकल रहे हैं. He's bringing out some new cool things out of it. So yeah. So my last question from you would be कि is UX worth it? Yes, definitely. It is worth it as long as you don't stick in 1-2 places. You actually make it a multidisciplinary thing. If you explore. It is worth it because obviously the whole beauty of UX is its experience. Experience सब चीजों का होता है. सभी चीजों का होता है. You are not like कि भाई कुछ भी हो, any sense you have, unless you lose all 6 of your senses. जब तक you have an experience to design for. So that's why it's such an explorative field. So अगर इंसान उस mindset से सोचे, it's always worth it and you will always find a way and your dream company. And even if you say कि यार UX आ गए
अब ना यार मेरे को तो कुछ और करना था भाई, तुम यूएक्स से वो कुछ और पे भी पहुंच सकते हो. Everything needs UX. Exactly, And everything has especially UX. physics laboratory needs it the most. उनके डिवाइसेस पुराने जमाने में 10 बटन दबा के काम होता है जो 2 बटन से हो जाता है, मुझे एक बट वो 10 भी बटन ही. हाँ मुझे एक भी मतलब फिजिक्स के इंस्ट्रूमेंट का नाम आई थिंक है, गैलोमीटर, गेल नहीं क्या होता है वो, गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर, यस, वो शुरू में Yeah. आता है, एटलीस्ट मुझे याद है एक, तो चलो बढ़िया है. Hmm. नाइस. सो सर इट वाज रियली गुड आपसे बात करके Yeah. इतने Thank दिनों you. बाद, एंड इट वाज अ लवली पॉडकास्ट. बहुत Thank इंटेलेक्चुअल you. बातें हुई हमारी काफ़ी, और काफ़ी अच्छी बातें करने के लिए Yeah. मिली हमें, और इट वाज अ वंडरफुल सेशन आई वुड से. Thank आप you so कुछ much. कहोगे लास्ट में जाते जाते, कुछ भी छोटा सा Last. मैसेज? Last में जाते जाते I will just say a very generic thing everyone says, dream big. Actually people don't. They should. एग्जैक्टली. लोग अपने एक बबल में बैठे रहते हैं और उस चीज़ से बाहर, Yeah. मतलब यू शुड नॉट थिंक Ne- स्मॉल, ऐसे Yeah. चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए Yeah. देखो. Dream big and perform. खत्म. यही फंड है. और ड्रीम बिग के लिए काम भी करो, ये नहीं कि बस ड्रीम वही, बिग. ड्रीम बिग एंड परफॉर्म. एग्जैक्टली, हाँ, एंड परफॉर्म, यस. तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड वी विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट सून. यार I will. डेफिनेटली. और सर का चैनल जाके सब्सक्राइब कर लेना यार, अभी सर अभी डालने वाले हैं वीडियोस कुछ दिनों में, या एंड मैं Yeah. उसी टाइम पे मेंशन कर दूंगी सर की जो भी यूट्यूब चैनल होगा, तो टाइटल में कर देंगे मेंशन. एंड इट वाज अ लवली पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच सर. वी विल सी थैंक यू सो मच वरुणा फॉर इनवाइटिंग मी. You're welcome, my pleasure. So I'll see you everyone. Bye bye and take care.